at the end stage of your preparation. If you will, if you won't believe in yourself, on your preparation, on your content, then the exam will be difficult. Okay, let's start. First, enemy identification. We know that we only check my voice and everything is clear, right? The screen is visible, my voice is audible. Okay. So first we will have to check the reticulocyte count. Okay, reticulocyte count will only tell us that whether there is a production failure or a peripheral loss. Anemia. What is anemia? Anemia is when there is a low hemoglobin. So if you will see there is a low hemoglobin, in a case there will be written that the hemoglobin of a woman 8 or a hemoglobin of a young boy 5 or a pediatric age group hemoglobin is 3. So you will see that there is anemia. Now, why is this anemia? What is the cause of that? So for that, you have to check reticulocyte. So the reticulocyte count, it is a precursor of the hemoglobin, right? First, there will be reticulocyte and then the hemoglobin, the RBCs will be produced. So reticulocyte is the precursor of the RBC. Yeah, pregnancy may there will be, yes. Right. So when there is reticulocyte count, when you will check the reticulocyte count, what it will tell you, like if the reticulocyte count is normal or less than 2%, then it will tell you that the production is not there. Right. If there is no production, then there will be less conversion. So because of the less of the production, there is anemia. So then there are the certain causes related to this. But if there is elevated reticulocyte count, that means that the production is going good. But whatever happening is that either there is a peripheral loss, like there is bleeding or something like that in a road traffic accident like that, or there is hemolysis internal, there is spleen is hyperactive, or patient is experiencing hypermenorrhea like that. You understanding? So everything depends on the reticulocyte count. Now, if we will see that either there is production, like as I said, either there is production engine failure, like bone marrow, something is there, something is suppressing the marrow, or either there is versus peripheral destruction. So we will see. See, so what is the production failure? It tells us like something is happened to the bone marrow. So the factory itself lacks a raw structural element or genetic code. Something is problem with the factory, production factory. So in that we have iron deficiency anemia, megaloblastic anemia, chronic disease, like anemia of chronic disease, or aplastic anemia. In aplastic anemia, what happens is there is dry type, right? The marrow is converted into fat. So production is not there. So what happens? The reticulocyte count decreases and RBC also decreases. But in peripheral loss or peripheral destruction, what is there? The reticulocyte count is more than 2. That means the production is working. The factory works at maximum capacity. But the cell are actively getting destroyed or lost outside. So in this, there is sickle cell anemia, right? G6PD deficiency, hereditary spherocytosis, or acute blood loss. Do you guys get it? So when you will see the hemoglobin level, and if it is low, so your mind should go where? To reticulocyte count. And if the reticulocyte count is less than 2 or more than 2 or less than 2, then if it is more than 2, then your mind should go that there is no production failure. There is outside, something happening outside. And if it is less than 2, then you will see something is happening in the marrow. Got it? Okay, tell me this question. First, 20 seconds. No time waste, guys. People, be active, guys. 20 seconds. Many students are there. Everybody should answer. Dr. Tanya, why you are saying A? Why? Give me your explanation of A. See, hemoglobin is low. Reticulocyte count is less than 2. That means production failure is there. कौन सा engine? Patient with severe fatigue and pallor, hemoglobin with a corpuscle, mean corpuscle is recorded 68. What is the correct initial? कौन सा engine? ये वाला engine failure. B वाला, हाँ हाँ वो spelling mistake होगा. तो Dr. Tanya, I am talking to you कि you have seen that this is less than 2. Reticulocyte count is less than 2 and MCV is 68. So that is microcytic. So when you will see ki reticulocyte count is less than 2, your mind should go where? See, peripheral hemolytic should, reticulocyte count will be more than 2. Immunomediated peripheral may be more than 2. Marrow stem cell aplasia leading to macrocytic? No.
अरे मैक्रोसाइटिक नहीं होगा, है ना, माइक्रोसाइटिक होगा, बिकॉज 68 दे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा? अरे क्यों नहीं पढ़ा? कोई जल्दी थी, कोई मना कर रहा था तुमको क्वेश्चन सही से पढ़ने में। एग्जाम में फिर क्या होगा? एग्जाम में सही से पढ़ना है ना। इफ यू दिस इज योर मिस्टेक देन इट इज ओके। कंसेप्ट मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जल्दीबाजी गलती है तो एग्जाम में ध्यान रखना, वो करेक्ट हो सकता है। अभी माइक्रोसाइटिक मोर्फोलॉजिकल ब्रांचिंगल डिफरेंशियल्स पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसको बोलेंगे? जल्दी चैट में बोलो, माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसको बोलेंगे? व्हाट इज द की फीचर ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया? मोर देन 100? डॉक्टर एच के, माइक्रोसाइटिक में किसको बोलेंगे? जल्दी बोलो। फास्टम फास्टम। Only MCV is not responsible. Yes, Dr. Tanya, very good. Also look at the RBC count. MCV and RBC count will tell you कि is it microcytic or is it macrocytic. बढ़िया है, चलो, very good guys. Candidates frequently mix up the iron deficiency and anemia of chronic disease and thalassemia trait. तो मैंने इन तीनों को साथ साथ में रख दिया है। इसमें क्या है? अच्छा, ओके। इसमें क्या है कि आरबीसी काउंट इफ इट इज लो और नॉर्मल and the serum ferritin is low, so that means you are looking at the iron deficiency anemia. ठीक है। what is the two feature of iron deficiency anemia? RBC count will be low or normal and the serum ferritin will be low. Both the things will be low. ठीक है, that is iron deficiency anemia. In thalassemia trait, what will happen? The serum ferritin is normal or elevated and the RBC count is very high. Why it is very high? Because the bone marrow is overcompensating. Bone marrow is trying very hard to overcompensate, मतलब वो RBC count बढ़ा देगा, ठीक है। एंड दैट इज इन द ट्रेट, थैलेसेमिया ट्रेट। एंड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में क्या होगा? आरबीसी विल बी नॉर्मल बट द सीरम फेरेटिन विल बी हाई। सीरम फेरेटिन विल बी ओनली हाई इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, बाकी सब में लो। तो इफ यू रीड इन द क्वेश्चन कि सीरम फेरेटिन इज हाई, you don't need to go for any other question, another buzzword. Only this one is enough for you, right? अगर आपने सीरम फेरेटिन हाई पढ़ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में ही हाई आ रहा है, ठीक है। फिर थैलेसेमिया ट्रेट में क्या देखेंगे आप कि आरबीसी इज हाई, बाकी दोनों में आरबीसी इज नॉर्मल और लो। तो अगर आपने आरबीसी हाई देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? यू विल सी इट इज थैलेसेमिया ट्रेट। एंड सीरम फेरेटिन आपने लो देख लिया एंड आरबीसी आल्सो लो देख लिया, देन योर माइंड शुड गो टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। देन देयर इज रेड डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम। ये दिस इज हाई इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नॉर्मल इन थैलेसेमिया ट्रेट एंड नॉर्मल इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो दिस इज आल्सो अ बज़वर्ड फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट? कि अगर आपने आईडीए पढ़ा एंड आरडीडब्ल्यू इज हाई, you have to see ki which value is mentioned in the question. RDW is given or not, serum ferritin is given or not, RBC count is given or not, what is given and what are the options, right? I always tell ki you should always go from, if in some difficult questions, if you are not understanding what to do, you should always go from option to question, ki what is given in the option. If in the option there are given ki iron deficiency anemia, option A, B is thalassemia trait, option C is anemia of chronic disease, option D is aplastic anemia, then your mind should know कि these guys are asking you to differentiate between these four. Then your eyes should search for the buzzwords कि what one characteristic feature you know about this disease is, कि if you know that in anemia of chronic disease the serum ferritin will be elevated, only in this disease the serum ferritin is elevated, then you should search for serum ferritin. If the serum ferritin is normal, you should rule out this option. समझ गए guys? ऐसे करके you have to save your time and you have to score marks, ठीक है। चलो, स्मॉल सेल्स मेनी आरबीसीज, देन इट इज थैलेसेमिया। स्मॉल सेल्स मतलब माइक्रोसाइटिक एंड मेनी आरबीसीज मतलब आरडीडब्ल्यू विल बी हाई, सॉरी आरबीसीज विल बी हाई, एचबी विल बी हाई, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक ऑफ थैलेसेमिया। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन में। देयर इज अ सिंपल रूल ऑफ आयरन ट्रांसपोर्टेशन। इफ द ferritin is low, that means कि body wants more iron. If the TIBC is high, that means the liver pumps out more transfer in transport to scavenge the missing iron. And if the ferritin is high, that means कि iron is already heavily stored. समझ गए?
or in this case the TIBC will be decreased. हमेशा every time the serum ferritin and the TIBC will opposite to each other. If the ferritin is increased, the TIBC will decrease. If the TIBC will increase, the ferritin will decrease. Okay guys, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सीइंग कि भाई आपके में सीरम फेरेटिन इज हाई, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है कि सीरम फेरेटिन इज हाई, देन यू शुड थिंक कि बॉडी नीड्स मोर आयरन, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। बट अगर इसके अलावा ऐसा भी लिखा हो कि TIBC इज मोर, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज, हाँ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, बट यू शुड नॉट कंफ्यूज कि TIBC ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि TIBC ज्यादा है तो आयरन भी ज्यादा है। TIBC ज्यादा है मतलब कि आयरन मिल नहीं रहा है, तो वो ढूंढने जा रहा है। TIBC इज गोइंग आउट टू फाइंड मोर आयरन, गेटिंग इट? तो इसके बीच में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सिंपल ट्रिक है, फेरेटिन ज्यादा तो TIBC कम, फेरेटिन ज्यादा मतलब आयरन है, फेरेटिन कम मतलब बॉडी को आयरन चाहिए, TIBC ज्यादा मतलब आयरन को ढूंढने जा रहा है, ठीक है। फिर हेप्सिडिन क्या है? हेप्सिडिन क्या है? इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अप रेगुलेट्स द हेप्सिडिन। जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है ना, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह है, किसी को ज्यादा, कोई तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ना, IBD है, IBS है, तो ऑल दिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विल अप रेगुलेट द हेप्सिडिन इन विच डिग्रेड्स द फेरोपोर्टिन चैनल्स। तो जो आयन है ना सेफली लॉक्ड इनसाइड द मैक्रोफेजेस, तो उसका मतलब क्या होगा कि आयन बॉडी में होगा बट वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। हमको हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो आयन चाहिए ना, वो मैक्रोफेज के अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये जो फेरोपोर्टिन चैनल्स है जिसके अंदर से आयन बाहर आता है, वो बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि हेप्सिडिन बढ़ जाएगा तो उसको लॉक कर देगा। समझ में आया पीपल? हेप्सिडिन क्या करेगा? पहले तो हाँ, TIBC विल बी इंक्रीज्ड। यस डॉक्टर तानिया, TIBC विल बी इंक्रीज्ड। तो हेप्सिडिन क्या करेगा? ओके वैभव भाई, कोई बात नहीं, आपने शायद ये पहले अटेंड किया हुआ है सेशन, दिस विल बी रिवीजन फॉर यू। तो हेप्सिडिन क्या करेगा? हेप्सिडिन विल, पहले तो हेप्सिडिन किसकी वजह से होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कौन कौन सी हमने पढ़ी अभी? व्हाट वी डिस्कस्ड, हाइपरटेंशन हो गया, कोई IBD IBS जैसा डिसीज हो गया, विच विल लीड टू इंक्रीज इन हेप्सिडिन। अभी हेप्सिडिन क्या करेगा? इट विल डिग्रेड द फेरोपोर्टिन चैनल्स, जो कि मैक्रोफेजिस में है, क्योंकि मैक्रोफेजिस के अंदर आयन स्टोर्ड रहता है, राइट। तो जैसे ये फेरोपोर्टिन डिग्रेड्स होगा, तो ये क्या करेगा? आयन को लॉक कर देगा अंदर। तो जब भी अपने को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयन चाहिए होगा, तो वो अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। पहले तो हाउ टू सप्लीमेंट आयन। तो पहले थेराप्यूटिक एंड एब्जॉर्प्शन आता है, आयन डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। यूजुअली वो लोग आपको क्या पूछेंगे कि पहले तो सप्लीमेंट कैसे करोगे, तो थेराप्यूटिक्स एंड एब्जॉर्प्शन पे आएंगे। एक्यूट आयन टॉक्सिसिटी, तो उसमें एंटीडोट का होगा, एंड क्रोनिक आयन ओवरलोड में आपको चिलेशन मेथड पूछेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं एक्यूट आयन पॉइजनिंग में। तो एक्यूट आयन पॉइजनिंग में फर्स्ट लाइन थेराप्यूटिक चॉइसेस डेफेरोक्सेमाइन, डेफेरोक्सेमाइन, ठीक है। ये या तो IV या तो IM देना चाहेंगे, ओरली कुछ इसका नहीं है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? विन रोज जो यूरिन है इसका, इट विल कन्वर्ट इनटू वाइन रोज और पिंक कलर, बिकॉज द फेरिक आयन विल टर्न दैट यूरिन इनटू पिंक कलर यूरिन, ठीक है। तो यू विल सी कि एक्यूट आयन पॉइजनिंग में एक तो पिंक कलर यूरिन होता है, वी गिव डेफेरोक्सेमाइन, ठीक है। क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन आयन ओवरलोड में डेफे डेफेरिप्रोन और डेफेरासिरोक्स, these are all oral active chelators. Now why do we give oral in chronic transfusion overload? Can anybody tell me? इसमें ओरल ओरल क्यों देते हैं? Why not we give oral in this? Why? जल्दी guys, fast fast, so many people are there. डॉक्टर हिरेन, डॉक्टर, बायो अवेलेबिलिटी का क्या करेंगे हम? बायो अवेलेबिलिटी का क्या, इसमें तो 100 होगा ना बायो अवेलेबिलिटी, तो उससे क्या होगा? हाफ आंसर इज करेक्ट वैभव भाई, कि इसमें एक्यूटली आयरन पॉइजन हुआ है तो वी हैव टू ट्रीट आल्सो एक्यूटली, और इसमें क्रॉनिक हुआ है तो IVIM देंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें ओरल एक्टिव चिलेटर देना पड़ेगा, ठीक है।
Defiprion administered via oral route, its main danger is bone marrow suppression, leading to a severe neutropenia or a granulocytosis. तो इसमें what you have to remember, defiprion, neutropenia, weekly absolute neutrophil count. ठीक है, तो इसमें you have to monitor ANC. You have to monitor ANC. Deficerox, oral active agent given once daily, it provides better patient compliance for long-term clinical maintenance. मतलब क्या हुआ कि when the patient comes to you for a chronic आयन ओवरलोड स्टेट, तो उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी द पेशेंट इज क्रोनिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसका हॉस्पिटल में बहुत बार एडमिशन हो गया है, तो द पेशेंट इज सिक ऑफ बीइंग इन हॉस्पिटल. सो नाउ इफ यू विल टेल कि आपको और IVIM पॉइंट चढ़ाना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, तो पेशेंट विल नॉट कंप्लाई, मतलब वो एक बार आएगा फिर दूसरी तीसरी बार ना भी आए. तो दिस ओरल एक्टिव एजेंट इज वेरी गुड फॉर द पेशेंट कि आपको रोज एक गोली लेनी है, आपका काम हो जाएगा, तो वो पेशेंट अच्छे से याद रखेगा रादर देन कमिंग टू हॉस्पिटल रेगुलरली, राइट. फिर आते हैं मैक्रोसाइटिक में. मैक्रोसाइटिक में क्या है कि MCV आपको 100 दिखेगा तो ऐसा नहीं सोच लेना है कि विटामिन डेफिशिएंसी ही है ना, कुछ और भी हो सकता है. तो एक तो आपको MCV 100 देखना है, मैक्रोसाइटोसिस, एंड देन ऑल्सो सी द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज इट सेइंग? इज इट सेइंग हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, और मतलब हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है और नहीं है. इफ द हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल आर प्रेजेंट देन इट इज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, मतलब DNA सिंथेसिस में प्रॉब्लम है. बट अगर नॉन मेगालोब्लास्टिक है तो उसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स विल नॉट बी प्रेजेंट, तो दैट इज नॉन मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटोसिस. समझ गए? मेगालोब्लास्टिक में आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉन मेगालोब्लास्टिक. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या डिफरेंस रहता है? देयर आर मैक्रो ओवेलोसाइट्स एंड दिस आर राउंड. नॉन मेगालोब्लास्टिक में राउंड होते हैं. ओके, प्लीज रिपीट, नो प्रॉब्लम. सी, व्हेन यू विल सी MCV मोर देन 100, that means ki the cell size are big. Now, are they big because of DNA problem or are they big because of non-DNA problem? So for that, you have to see the peripheral blood smear. In peripheral blood smear, if you will see, there is hypersegmented neutrophil. The neutrophil is hypersegmented. That means ki yes, this is a DNA synthesis problem. So you can diagnose megaloblastic anemia. But if you see that there is no presence of hypersegmented neutrophil, that means कि this is not a DNA synthesis problem. This is a non-megaloblastic anemia. Understood? Zoom user. What is the difference between these two? That we will discuss. कि in the megaloblastic anemia, there are large oval-shaped red cells, macroovelocytes. But in non-megaloblastic anemia, there is round because it is driven, because it is not a DNA problem, right? It is like alcohol or liver disease problem. So in that there is round macrocytes, in this oval-shaped macrocytes in megaloblastic. Also this, as I said, hypersegmented and normal segmentation, no problem. Now, if you see a giant metamyelocytes, in any question there is written there is a giant metamyelocyte present. From bone marrow you did biopsy and you see there is giant metamyelocytes, then it is a megaloblastic anemia. Okay. If in the question MCV and everything is not written, there is just a history written, and it is saying that patient comes to you with any complaints of anemia and you did a bone marrow biopsy directly. And in bone marrow biopsy, you see metamyelocytes, giant metamyelocytes. Then your brain should go to megaloblastic anemia. The massive abnormal white cells display loose uncoiled nuclear chromatin and definitive bone marrow signature of primary replication defect. It is what this represents. What is this? It is written. Just read once. No need to understand. Now, how to difference between vitamin B12 and folic acid? Chalo, tell me in chat. How to differentiate? Somebody tell me. Fast, fast. Tell me all the features. 2-3 features are there. Type karo jaldi jaldi. If you will answer correctly, Mayank bhai will take you to his next trip with you, with him, wherever he will go. Spina bifida, Dr. Anjali. I am saying what is the difference? How you will tell कि vitamin B12 deficiency is there and folate acid deficiency is there. Okay, NTD you can say folate acid deficiency. Okay, but I am saying कि MCV is more than 100. Okay,
Now how you will tell differential ki megaloblastic anemia we have now, and also there is hypersegmented neutrophil present. Then what is the difference between how you will tell ki which is this? Is this vitamin B12 or is this folic acid? Which test you will do? Did you understand my question, guys? I am saying ki in megaloblastic anemia, there are two causes. One is B12 deficiency and folic acid deficiency. But usually these both are present together. So we give treatment for both. So generally megaloblastic anemia का treatment ही ये दोनों साथ में बन गया है. But ऐसा हमेशा possible नहीं है. Sometimes individually they also, show some faces. So how you will make a difference between them? Which test you will do? Doctors, Dr. Divyanshu, Dr. Double A, Dr. Shivi, Dr. Zoom user, Dr. Tanya, बोलो हाँ MMA. Very good, Dr. Mayan. MMA क्या है? Methyl malonic acid. If there is methyl malonic acid increased, then what will be diagnosis? Dr. Mayank, यूक्रेन, बोलो क्या diagnosis होगा अगर मिथाइल B12? Yes, very good, Dr. HK. तो the neurological symptoms. If the neurological symptoms are present, that means ki the vitamin B12 neurological symptoms matlab altered mental sensorious, right? And there is normal neurological symptoms in folic acid deficiency. समझ गए? Now, for example, what will happen कि patient comes to you with neurological symptoms and anemia, and you are thinking कि this can be folic acid deficiency, and you do not give vitamin B12. तो अब क्या होगा? हाँ, तो अब क्या होगा कि एनीमिया ठीक हो जाएगा क्योंकि विटामिन एसिड आपने फॉलिक एसिड दिया है तो एनीमिया ठीक हो जाएगा, बट द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विल बी वर्सन. तो यू शुड ऑलवेज कंफर्म विथ एमएमए मिथाइल मेलोनिक एसिड देके. इफ देर इज एलिवेटेड देन इट इज अ मेटाबॉलिक ब्लॉक एंड यू हैव टू ट्रीट विटामिन B12. इफ द एमएमए इज नॉर्मल देन इट इज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. समझ में आया? ट्रीटिंग विथ फॉलिक अलोन विल वर्सन द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम. सेफ टू सप्लीमेंट इंडिपेंडेंटली. ठीक है? नेवर गिव फोलेट अलोन व्हेन B12 डेफिशिएंसी इज पॉसिबल. है ना? एज आई सेड कि हम यूजुअली दोनों साथ में ही देते हैं, B12 भी देते हैं, फोलिक एसिड भी देते हैं. ठीक है? फिर आते हैं, चलो, पैथोजेनेसिस एंड सिकलिंग डायमीज कि इसमें क्या होता है. ग्लूटामिक एसिड, ये अपने को मालूम है. प्लीज रिपीट अगेन. क्या ये वाला B12 वर्सेस फोलेट डोज बाय PSM में देख लो यार. डोज ये डॉक्टर राठौड़. हाँ, तो आई एम सेइंग कि सी, अगर कि MCV मोर देन 100 हुआ तो इसका मतलब कि दिस इज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. एंड ऑल्सो इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, तो इसका मतलब कि देर कैन बी अ DNA डिफेक्ट जिसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. नाउ जनरली व्हाट हैज हैपेंड कि बोथ प्रेजेंट्स साइमल्टेनियसली, तो वी गिव बोथ का ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली, but they also individually present in some patient. So how you will differentiate between them is by doing a blood test of MMA, methyl malonic acid. If in the blood test MMA is elevated, that means ki vitamin B12 deficiency is there, and if the MMA will be normal, that means ki folic acid deficiency will be there. Itna understood? Now, without blood test also you can see by the neurological symptoms. If the neurological symptoms are present, that means कि vitamin B12 deficiency है, and if the neurological symptoms are absent, that means folic acid deficiency है. Now, if the patient is coming to you with just the neurological symptoms and you don't remember this point and you give just folic acid, now what will happen? The anemia will be good, but the neurological symptoms will be worse. Why? Because you are not giving B12. So if you are suspecting also folic acid anemia and you are not doing this test, you should give vitamin B12 just by chance to avoid this neurological symptom worsen. Getting it? समझ में आया क्या? चलो, गुड.
नाउ सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करते हैं. नाउ इफ आई टेल यू कि वी हैव डायग्नोस्ड द पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेटिकुलोसाइट काउंट? विल इट बी हाई और विल इट बी लो इन अ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट? डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर मानसी, डॉक्टर नाव्या. लो? व्हाई यू आर सेइंग लो? लो क्यों बोल रहे हो गाइस? सिकल सेल एनीमिया मतलब इट इज अ पेरिफेरल कॉज, राइट? द ब्लड सेल्स आर ब्रेकिंग. दिस इज नॉट अ मैरो, बोन मैरो प्रॉब्लम नहीं है. यस इट विल बी हाई, यस इट विल बी इन सिकल शेप, सो दे विल स्टक, है ना, एंड स्प्लीन विल ब्रेक देम. तो देर विल बी a high breaking of RBCs. Getting it? So the marrow will have to work more, so it will produce more. It will be low only in the cases of marrow affection. If the bone marrow is affected, like in aplastic anemia, like in iron deficiency anemia, those who are saying low, don't confuse. ठीक है? तो ग्लूटामिक एसिड वेलाइन सब्स्टिट्यूशन होगा एट सिक्स पोजीशन ऑफ द बीटा चेन, डीऑक्सीजनेशन कॉजिंग द आरजीबीएस टू पॉलीमराइज, है ना. वेलाइन सब्स्टिट्यूशन होगा एट द सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन, डीऑक्सीजनेशन कॉजिंग एचबीएस टू पॉलीमराइज, एंड इट विल फॉर्म अ सिकल सेल. तो सिकल सेल क्राइसिस एंड द स्प्लेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या डिफरेंस है? तो वी विल सी कि इफ देयर इज एप्लास्टिक क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस में क्या होगा? there will be a certain drop in baseline HB. Aplastic crisis, can anybody tell me what is aplastic crisis? aplastic crisis माने कुछ पार्वो B19 वायरस क्या करता है? पैथोलॉजी गाइस, मेडिसिन पैथोलॉजी, जल्दी बोलो. हाँ हाँ, पार्वो वायरस क्या करेगा? व्हाट इट विल डू डॉक्टर अंजलि? एप्लास्टिक क्राइसिस में वो बोन मैरो को क्या कर देगा? रेड चीक्स, डजंट मैटर. बोन मैरो को क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बंद करेगा. प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इन्फेक्शन हो जाएगा. ओके ओके, दैट इज सेकल सेल कोजिस ए प्लास्टिक एनीमिया. आई एम जस्ट आस्किंग ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? बोन मैरो का क्या होगा? आई एम जस्ट चेकिंग कि सप्रेशन हो जाएगा, सेल्स गायब हो जाएंगे. इसका कोई आपके पास वर्ड नहीं है कुछ? ड्राई टाइप हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, ट्रांजिएंट. किसी ने प्योर रेड सेल एप्लेजिया सुना है कभी जीवन में? प्योर रेड सेल एप्लेजिया किसी ने लिखा है? हाँ, तो ये है. दिस इज अ प्योर रेड सेल एप्लेजिया, मतलब कि सब जो भी अपना रेड सेल है वो बन ही नहीं पाएगा, बंद, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. बट वो क्वेश्चन में थोड़ी ऐसा लिखा होगा कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? प्योर रेड सेल एप्लेजिया. एंड देन यू विल कंफ्यूज कि ये क्या है, ये कुछ नया आया है, इस बार तो सिलेबस के बाहर पूछ लिया. दिस इज जस्ट अ प्योर रेड सेल एप्लेजिया का हिंदी ट्रांसलेशन होता है आरबीसी बनना बंद हो जाना. ठीक है? तो एप्लास्टिक क्राइसिस में देर इज अ रेटिकुलोसाइट. अभी रेटिकुल अगर आरबीसी प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि उसका प्रीकर्सर भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होता है कि आरबी रेटिकुलोसाइट काउंट विल गो टू जीरो, नियर जीरो. ठीक है? एंड अगर आरबीसी प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उसको मारने का काम जो स्प्लीन करता था वो भी नहीं होगा. तो द स्प्लीन विल फॉर्म इन कन्वर्ट इनटू फाइब्रोटिक और नॉन पाल्पेबल, मतलब छोटू सा हो जाएगा, एंड इट विल बी नॉन पाल्पेबल. बट स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? कि there is massive blood pooling leads to hypovolemic shock, and the reticulocyte, because there is blood pooling, right, the blood, there is blood उधर loss हो रहा है, तो reticulocyte count will be very high, and in that the spleen will be enlarged, क्योंकि उसको तोड़ना भी है ना ब्लड को. समझ में आ रहा है गाइस डिफरेंस? यू आर गेटिंग इट? प्योर रेड सेल एप्लेजिया मतलब कि एप्लास्टिक क्राइसिस caused by a parvovirus virus, and reticulocyte count will be dropped dead to zero. RCA, selective reduce in अर्थ प्रिव, मतलब
Right coronary artery you are saying, or RBC you are saying? अच्छा, एरिथ्रोसाइट प्रीकर्सर, हाँ हाँ हाँ, यस यस, इन दिस सेल ओनली यू आर सेइंग, नो प्रीकर्स इन दिस, या रेड सेल एप्लेसिया यू आर सेइंग, यस यस, ओके. So if there is low hemoglobin, low reticulocyte count, think aplastic crisis immediately. And in this, there is what is autosplenectomy? मतलब कि there is repeated vaso-occlusion in the splenic capillaries and microinfracture, progressive reticulum fibrosis. There will be shrunken and small spleen, and then this spleen will convert into like वो autosplenectomy हो जाएगा. This explains why adult sickle cell patient present with functional asplenia and are vulnerable to encapsulated organisms. मतलब the spleen helps in protecting against the encapsulated organism. तो इफ दर इज एडल्ट सिकल सेल पेशेंट जिनको ये वेजो ऑक्लूजन की वजह से ऑटोस्प्लेनेक्टोमी हो गया है, तो उसके उसके केसेस में क्या होगा कि दे विल कम टू यू विथ अ फंक्शनल एस्प्लेनिया एंड दे आर वेरी वल्नरेबल टू एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स. चलो जी6पीडी पे आते हैं. अभी देर आर टू कंफ्यूजिंग थिंग. एक तो हाइंस बॉडी है, बाइट सेल्स है, ठीक है. दोनों आर सीन इन द G6PD डेफिशिएंसी, हाइंस बॉडी एंड बाइट सेल्स, बट बोथ आर डिफरेंट बाय पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है. तो हाइंस बॉडी क्या है? दे आर ऑक्सीडाइज्ड डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट्स इनसाइड द सेल. तो यू विल सी हाउ विद द हेल्प ऑफ सुप्रावाइटल स्टेन. Heinz body you will see with the help of supravital stain, they are oxidized and denatured hemoglobin, ठीक है. But what are the bite cells? They are splenic macrophages pluck out the rigid Heinz bodies as the RBCs pass through. समझ में आया guys? What is this? What is bite cells? ये जो स्प्लिनिक मैक्रोफाजेस है ना, वो जो हाइंस बॉडीज है ना, उसमें से कुछ तो टूटा हुआ है, बाइट जैसा दिखता है. ये देखो, सी बाइट सेल्स देखो. ये देखो बाइट सेल्स. हाँ, एप्पल बाइट इन आईफोन. हाँ, बर्गर का कोई बाइट ले लिया, यस. एंड हाइंस बॉडी, सी दिस इज हाइंस बॉडी. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है बड़ा सा, उसमें से अगर कुछ टूटा हुआ है तो दैट इज बाइट सेल्स. समझ में आया? मतलब ये अगर हाइंस बॉडी है, दिस इज हाइंस बॉडी प्रेसिपिटेट ऑफ द आरबीसी. अभी इसको क्या करेगा? इसको जो स्प्लेनिक मैक्रोफाज है वो इधर से काट डालेगा. तो इससे क्या होगा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो किसी ने कुछ खाया हो ऐसा लगेगा. तो ये बाइट सेल है. बोथ आर सीन इन G6PD डेफिशिएंसी. अभी पीएनएच पे आते हैं. व्हाट इज पीएनएच? पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया. तो इसमें क्या होता है कि कोई तो पिगाजिन म्यूटेशन होता है और उसमें लॉस ऑफ जीपे एंकर्स हो जाते हैं. So because of this loss of GPI anchors, there is a deficiency of complement regulatory proteins like CD55 and CD59. And because of this, they are unchecked MAC assembly. MAC मतलब membrane attack complex. तो वो intravascular hemolysis and thrombosis कराएगा. For example, in Budd-Chiari वगैरह के उसमें. And you will see there is a paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. समझ गए? Getting the pathophysiology, pigagine mutation leading to GPI anchor loss, which will lead to deficiency of complementary regulatory proteins like CD55 and CD59. तो ये जो मैक है अपना मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वो खुद को ही अफेक्ट करेगा, बॉडी को ही. CD55 CD59 दे आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन्स ब्रो, उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. प्लस माइनस क्या उतना, मतलब वो काम करता है. CD59 CD15 CD55 CD59 ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है उसको चेक में रखता है. मतलब कि भाई तू इसको ही अटैक करना है, ये घर का है ये बाहर का है, तो तू इसको अटैक करना, इसको मत करना.
बेसिकली CD55 CD59 इतना काम करता है, सिंपली आई कैन एक्सप्लेन इतना। हाँ, गेट कीपर मतलब कि वो ये जो मेमोरी अटैक कॉम्प्लेक्स है ना अपना मैक, उसको चेक में रखता है कि तू इसको अटैक करना, इसको मत करना। तो अगर ये इसका डेफिशिएंसी हो गया तो ये किसी को भी ठोक देगा। तो इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल मतलब अपना ही कैपिलरीज, अपना ही ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेगा, एंड इट विल कॉज इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस एंड थ्रोम्बोसिस। तो इसकी वजह से यू विल सी वीनस एट मतलब एटिपिकल वीनस साइट्स पे, मतलब लीवर के वगैरह के आसपास, एंड ऑल दिस हिमोलिसिस विल कम आउट फ्रॉम यूरिन, है ना। तो यू विल सी कि एक तो पेरोक्सिस्मल है, मोस्टली नाइट में है, एंड हीमोग्लोबिनूरिया मतलब यू आर सीइंग ब्लड इन यूरिन। समझ में आया गाइस? पीएनएच, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स, पिगा जीन म्यूटेशन, जीपीआई लॉस, एंड CD55 59 का डेफिशिएंसी लीडिंग टू अनचेक्ड मैक। मैक बोले तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, विच विल लीड टू hemolysis, intravascular hemolysis plus thrombosis at atypical venous sites। इतना याद रखना है, ठीक है। चलो, अभी स्फीरोसाइट्स और अपने को देखना है वार्म एंड कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में, ठीक है, कि वार्म क्या है, कोल्ड क्या है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर वार्म ऑटो इम्यूनिटिक एनीमिया है तो उसमें आईजीजी इज रिस्पॉन्सिबल, एंड कोल्ड में आईजीएम इज रिस्पॉन्सिबल। अभी कोल्ड में क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाता है व्हेन देयर इज कोल्ड, तो वी आल्सो गेट क्लम्प्ड, राइट। तो इन कोल्ड AIHA यू सी आरबीसी क्लम्पिंग, एंड इन द वार्म AIHA यू सी स्फीरोसाइट्स ऑन द स्मीयर। Guys, this is the last time you are studying for FMG. You have to clear this time. So try to focus. Ki when there is warm AIHA, there is a spherocytes on the smear. When there is cold AIHA, there is a RBC clumping. ठीक है? The direct cum test, this is IgG positive. मतलब IgG रिस्पॉन्सिबल है तो IgG पॉजिटिव होगा, एंड IgM रिस्पॉन्सिबल है तो इसमें सिर्फ C3 पॉजिटिव होगा। ये क्यों होता है अभी समझने का टाइम नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस बज़वर्ड्स कि कोल्ड AIHA RBC क्लम्पिंग, IgM इज द रिस्पॉन्सिबल वन। तो इसमें C3 पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका क्लिनिकल ट्रिगर्स क्या है फॉर द वार्म AIHA, देयर इज SLE CLL एप्लेजिया मेथाइल डोपा, ठीक है, अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है। दिस आर द क्लिनिकल ट्रिगर्स फॉर वार्म AIHA, वार्म ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। एंड कोल्ड में माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया एंड EBV वायरस, है ना, एप्स्टीन बार वायरस, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड AIHA। Management from warm AIHA, it responds directly to the systematic corticosteroid. But cold AIHA requires avoiding cold exposure. Steroids and splenectomy are ineffective because red cell clearance occurs via complement outside the spleen. मतलब इसमें जो C3 है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उसकी वजह से अपन स्टीरॉयड वगैरह देंगे या स्प्लिन वगैरह देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। स्टीरॉयड को सिर्फ वार्म ही स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड करेगा। समझ में आया? स्टीरॉयड, स्फीरोसाइट्स, वार्म AIHA, IgG पॉजिटिव, SLE CLL अल्फा मिथाइल डोपा। नो कंफ्यूजन गाइस, ये टेबल याद रखना एंड तक, है ना। फिर आते हैं ब्लीडिंग टाइप्स। अगर प्राइमरी प्लेटलेट डिसऑर्डर है या सेकेंडरी कोएगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर है, हाउ विल यू डिसाइड कि ये दोनों में से क्या है। तो आपको पहले ब्लीडिंग टाइप पता होना चाहिए कि अगर पेटी के एकाइमोसिस म्यूकोसल छोटो छोटो सा ब्लीडिंग हो रहा है इधर इधर, है ना, तो इट इज अ प्राइमरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बट अगर डीप टिश्यू हिमेटोमा, हिमोआर्थ्रो मतलब जॉइंट्स वगैरह में ब्लड चला गया, इधर पूरा तुमको दिख रहा है रेड ब्लैक ब्लैक रेड रेड ब्लू ब्लू कलर का, तो हिमो मतलब बहुत ज्यादा हिमेटोमा हो गया ना, एक बड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, तो दैट इज सेकेंडरी कोएगुलेशन फैक्टर, मतलब कोई तो इंटरनल ब्लीडिंग हो गया एंड नाउ इट इज नॉट गेटिंग कोएगुलेटेड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, you have to see कि bleeding time is increased in this patient। पेटी के एकाइमोसिस प्राइमरी प्लेटलेट डिसऑर्डर में द ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज्ड, बट इन दिस पेशेंट प्लेटलेट का कोई दिक्कत नहीं है, कोएगुलेशन फैक्टर का दिक्कत है, तो द ब्लीडिंग टाइम विल बी नॉर्मल। बट द PTAPTT जो कोएगुलेशन फैक्टर का बेंचमार्क है, इन दिस पेशेंट देयर इज नो कोएगुलेशन डिसऑर्डर, तो दिस विल बी नॉर्मल, बट इन दिस पेशेंट दिस विल बी इंक्रीज्ड। गाइज मेरा स्पीड सही है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम सेइंग। अगर प्राइमरी प्लेटलेट डिसऑर्डर है तो द PTAPT शुड बी नॉर्मल, बिकॉज दिस आर व्हाई दिस आर चेक्ड फॉर कोएगुलेशन फैक्टर, राइट, 2 to 7 2 to 9। समझ में आया?
विटामिन के डिपेंडेंट है सब, गेटिंग इट, कोएगुलेशन कास्केड, तो वो सब ये इनसे पता चलेगा, पीटीए पीटीटी से। तो फॉर दैट, अगर सेकेंडरी कोएगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर है, सम फैक्टर इज मिसिंग, फैक्टर 8 इज मिसिंग, लाइक हीमोफीलिया ए, राइट, हीमोफीलिया बी, तो इन पेशेंट में यू विल सी सेकेंडरी कोएगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर। बट अगर प्राइमरी प्लेटलेट डिसऑर्डर है तो यू विल सी पीटीए पीटीटी नॉर्मल। नाउ हेरिडिटरी प्लेटलेट डिफेक्ट्स एंड मिक्सिंग प्रोटोकॉल्स, नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर प्राइमरी हेमेस्टोसिस है, बर्नर्ड सोलियर वर्सेस ग्लांसमैन, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, तो व्हाट विल हैपन कि इन बर्नर्ड सोलियर द प्लेटलेट विल बाइंड, प्लेटलेट विल एधरेंट, मतलब वो चिपक जाएगा, तो किसको, सब एंडोथेलियल लेयर को, समझ रहे हो? अगर बर्नियर सोल्जर्स है तो बर्नर्ड, द प्लेटलेट विल फेल, सॉरी, द प्लेटलेट विल फेल टू बाइंड टू द सब एंडोथेलियल लेयर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जाइंट प्लेटलेट्स, मतलब जीपीआईबी रिसेप्टर डेफिशिएंट हो जाएगा, तो उसमें जाइंट प्लेटलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बाइंड नहीं करेंगे, दिस सब एंडोथेलियल लेयर में वो बाइंड नहीं करेंगे। बट इन ग्लांसमेल्स में क्या होगा, द प्लेटलेट विल बाइंड टू ईच अदर, प्लेटलेट टू प्लेटलेट वो हो जाएगा, प्लेटलेट टू प्लेटलेट बाइंड फेल हो जाएगा, तो उसमें अपने को क्या क्या GP2B3A रिसेप्टर डिफेक्ट हो, तो इसमें आपको दो चीज याद रखनी है, GP1B, GP2B3A, these both are receptors। तो what you have to remember is कि if GP1B receptor failure लिखा है या deficiency लिखा है, this is talking about Bernard Solius, both of them are responsible for primary platelet disorder। वो बाद में देखेंगे, ठीक है डॉक्टर। दिस आर लाइक वेरी सिंपल, हीमोफीलिया है मोस्टली सीन इन बॉयज, वन बर्नडाउन में ऐसा कुछ बॉयज का हिस्ट्री नहीं होगा, यंग बॉयज का हिस्ट्री नहीं होगा, इजीली यू कैन डिफरेंशिएट। उतना फीचर में मत घुसो, एक एक बज़वर्ड पकड़ के आगे बढ़ जाओ, एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आई विल जस्ट राइट इट डाउन, बाकी एंड में डिस्कस कर लेंगे। सी व्हाट आई एम सेइंग इज, we studied here some primary platelet disorders, Dr. Shivi. In that, we see that there is the bleeding is petechiae, ecchymosis or mucosal. Choto bleeding is there, and the bleeding time is increased. Now we are studying the disease. So in that we see two diseases, Bernard Solier and Glanzmann. These both are primary platelet defects disorders. So how you can differentiate in these two in question is, if in the question they are saying that there is a patient coming to you with recurrent petechiae, recurrent ecchymosis or recurrent mucosal disorder, and you gave a gene study, receptor study, to see which receptor is not functioning, or you gave a test to see which platelet is adherent to. So now you are saying in the question it is written that the platelet is not binding to the subendothelial layer, or there is a GP1B receptor defect. So your brain should go ki, okay, this is Bernard Solius. But if they tell you in the question ki the platelet is not attaching to each other, there is a platelet to platelet adherent defect, or the GP2B or GP3A receptor is not functioning properly, that means your brain should go to Glanzmann's disease. So understanding, these both are responsible for primary platelet defect, but there is some difference between these two also. In this, there is the platelet to platelet defect. In this, the platelet is not attaching to the subendothelial layer, and the receptor GP1B, GP2B, GP3A. Understood, Dr. Shivi? Now, what is mixing study, guys? When the patient present with an isolated, unexplained prolongation of the APTT. For example, मतलब क्या हुआ? Now we are talking about coagulation factor disorder. समझ गए? So when there is coagulation factor disorder, तो you have to know exactly कि which factor is disorder, which factor is missing, or which factors are missing. So for that you will do PT APTT. Now in some patient, the APTT will be very prolonged, very like away from the baseline. So in that you will do a mixing study, means कि you will add, this is a diseased blood, ठीक है? This is a diseased blood, DB.
and normal blood. Now see, try to understand. This is a vacuotenor with a deceased blood, and you will do a PT APTT. So APTT should come abnormal because this is a deceased blood. समझ में आ रहा है guys? APTT should be abnormal. हाँ, ब्लू वैक्यूटेनिया, थम्स अप दे दो. APTT should be abnormal. फॉर एक अभी अगर मिक्सिंग स्टडी भी किया, व्हाट वी डिड इन मिक्सिंग स्टडी, वी विल ऐड 1:1 both normal blood plus deceased blood in 1:1 ratio we put in this. Now if the APTT value comes to normal, what does this say? What does this say? चलो people tell me, what does this say? Fast, बहुत सारे लोग हैं, जल्दी बोलो. What does this say? If we put normal blood plus this deceased blood with 1:1 ratio and the APTT value comes normal, what does this say? हेलो, दिस से कि जो फैक्टर इसमें मिसिंग था वो फैक्टर नॉर्मल ब्लड ने दे दिया एंड द एपीटीटी कम नॉर्मल. समझ में आया कि जो भी फैक्टर डेफिशिएंट था डिसीज्ड ब्लड में, जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं हो रहा था, वो ये नॉर्मल ब्लड ने दे दिया. ट्रांसफर इन है, हाँ, मतलब फैक्टर ट्रांसफर हो गया. मतलब जो फैक्टर अपने पास इसके पास था नॉर्मल ब्लड का, वो डिसीज ब्लड के साथ मिक्स हो गया क्योंकि हमने 1:1 रेशियो दिया है. तो एपीटीटी वैल्यू केम टू नॉर्मल. समझ में आया? अगर एपीटीटी करेक्ट टू नॉर्मल इंडिकेट्स अ सिंपल फैक्टर डेफिशिएंसी, मतलब डिसीज ब्लड में कुछ नहीं है, बस कोई तो फैक्टर मिसिंग है. बट अगर एपीटीटी डिडंट कम नॉर्मल, हमने ये किया एंड द एपीटीटी वैल्यू वाज नॉट नॉर्मल, तो मतलब क्या हुआ? देयर इज सम इनहिबिटर प्रेजेंट which is not letting this factor to work. Some autoantibodies are present which are not letting this new factors, जो कि जो नॉर्मल ब्लड में है उसमें जो फैक्टर्स है उसको काम ही नहीं करने दे रहा है. मतलब कि जो डिसीज ब्लड है उसमें फैक्टर्स आर देयर बट देयर आर सम एंटीबॉडीज which are not letting these factors to work. That is why we are seeing a coagulation defect. Guys, it is very simple, very logical. समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया जल्दी बोलो, आई विल एक्सप्लेन अगेन. जल्दी बोलो, क्या चीज समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो. टाइम वेस्ट नहीं करना है आज. वी हैव टू फिनिश दिस एज अर्ली एज पॉसिबल. आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है. फिर व्हाट इज दिस टीटीपी एचयूएस डीआईसी? व्हाट इज दिस? hemolytic uremic syndrome. What is this? What are these disorders? किस चीज का डिसऑर्डर है ये? कैन एनीबडी टेल मी? फुल फॉर्म नहीं चाहिए. लेटलेट का क्या डॉक्टर तानिया? तो वी कैन सी सम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह, राइट? यस डॉक्टर तानिया, यू आर राइट. देयर इज सम प्लेटलेट डिसऑर्डर. तो व्हाट हैपेंस इज कि टीटीपी एंड एचयूएस ऑलमोस्ट दे शो सिमिलर प्रोफाइल but DIC has some different profile. So we will see कि schizocytes are present in both because there is microvascular shearing, but the PT APTT panel is completely normal in the TTP and HUS because they are platelet disorder problem. But these are DIC syndrome is wildly prolonged, मतलब there is a coagulation problem. समझ में आ गया? You can easily differentiate now TTP, HUS and DIC. DIC में क्या हो रहा है कि there is also microvascular shearing, TTP, HUS also microvascular shearing, but the difference is कि इसमें there is a coagulation का problem, इसमें there is a platelet का problem. समझ में आया? Also D-dimer in TTP, HUS D-dimer is normal, but in DIC D-dimer is very high, है ना? क्योंकि वो थ्रोम्बिन फॉर्म कर देता है, राइट? इन कोरोना वायरस वी ऑल्सो सी कि D-dimer करते थे पेशेंट का. वाई? बिकॉज कोरोना वायरस कॉजिंग
मतलब कोरोना वायरस क्या कॉज करता था? थ्रोम्बस, थ्रोम्बस बना देता था, राइट? वो ब्लड में कोएगुलेट कर देता था वो ब्लड, तो पेशेंट को शॉक वगैरह के सिम्टम्स भी होते थे, राइट? चलो अभी एएलएल वगैरह में आ जाते हैं। तो पहले तो यू गाइस टेल मी, एएलएल ल्यूकीमियाज, व्हाट डज दिस एक्यूट इन दिस एएलएल, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में एक्यूट क्या कहता है? मतलब कि बच्चों को होता है, डॉक्टर एच के, आई थिंक यू हैव अटेंडेड अवर सेशन, राइट? उसमें मैंने, आई होप यू हैव अटेंडेड। तो एज आई सेड कि अक्यूट मतलब कि इट इज एक तो अक्यूट एंड इट इज अ लिम्फोब्लास्ट। तो लिम्फोब्लास्ट एंड लिम्फोसाइट के बीच में डिफरेंस क्या है? लिम्फोब्लास्ट मतलब इट इज नॉट अ सेल, वो अभी लिम्फोसाइट नहीं बना है, इट इज अ प्रीकर्सर टू दैट। तो उसका मतलब इट इज वेरी अर्ली, राइट? तो दैट मीन्स कि अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपेंस इन द चिल्ड्रन। नाउ अक्यूट माइलोइड मतलब, माइलोइड लिनिएज मतलब लिम्फोब्लास्ट से वो आगे बढ़ चुका है, इट इज वेरी नियर टू आरबीसी। तो दैट मीन्स कि दिस इज इन अक्यूट बट इन एडल्ट। समझ में आया एएलएल एएमएल में डिफरेंस? जिन लोग को डर लग रहा था इनसे, गाइस थम्स अप दो। एक्यूट lymphoblastic leukemia, acute myeloid leukemia, both of them are acute, so both of them will give you early onset, मतलब कि अभी अभी डिसीज हुआ है, अभी 2-3 साल पहले ही डिसीज हुआ है। बट इन लिम्फोब्लास्टिक देर इज चाइल्ड, इन माइलोइड देर इज एडल्ट। तो इफ ए पेशेंट कम्स टू यू विथ अ एडल्ट एक्यूट ऑनसेट एडल्ट एएमएल, एक्यूट ऑनसेट चाइल्ड एएलएल, डिफरेंस है ना, इजी। अभी तुमको एक्स्ट्रा फीचर्स बता देता हूं। टीडीटी, टीडीटी क्या है? अगर कोई इमेच्योर लिम्फोइड सेल है तो वो टीडीटी देगा, टीडीटी उससे रिलीज होगा। तो यू कैन इजीली टेल कि अगर आपका टीडीटी पॉजिटिव है तो मतलब कोई इमेच्योर लिम्फोइड है, वो बढ़ रहा है बॉडी में, तो दैट मीन्स लिम्फोब्लास्ट्स आर इंक्रीजिंग। बट इफ इट इज अ एमपीओ, माइलो पेरोक्साइड पॉजिटिव, तो ये जो माइलोइड है उसका कोई तो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, तो एमपीओ, if the MPO is giving positive तो that is AML। बाकी पैथोग्नोमिक क्लू क्या है? लिम्फोब्लास्ट आर सीन विथ अ स्कैंट साइटोप्लाज्म, मतलब कि वो लिम्फोब्लास्ट इतने नए हैं कि उसका साइटोप्लाज्म भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। समझे गाइस? इट इज वेरी वेरी न्यू। तो वो इतना अनकंट्रोलेबली बढ़ रहा है, तो वो एक सेल को कंप्लीट भी नहीं कर रहा है और दूसरे में आगे बढ़ जा रहा है। तो द साइटोप्लाज्म इज वेरी स्कैंट एंड ओर रोड्स आर सीन इन एएमएल। ओर रोड्स का आपने फोटो देखा है क्या? ये देखो, ओर रोड्स, these are seen in AML, ठीक है? चलो, they are aggregated eosinophilic granules, ओर रोड्स आर एग्रीगेटेड eosinophilic granules। अभी सी, ALL डायग्नोस्टिक ट्रिगर टीनेज और एडोलेसेंट मेल प्लस मीडियास्टेनल मास। अगर ये है टीनेज एडोलेसेंट मेल प्लस मीडियास्टेनल मास which will cause a pleural effusion or SVC, तो you have to think कि there is a T cell mediated ALL, और इसके मार्कर्स है CD3, CD4, CD7, CD8। समझ गए? टी सेल मीडिएटेड, गेटिंग इट गाइस? नाउ इफ आई टेल यू यंग चिल्ड्रन विथ टीडीटी पॉजिटिव, सिंपल। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर, सिंपल है गाइस, इजी। एक्यूट ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट एडल्ट मेल, एमपीओ पॉजिटिव, ओवर रोड्स प्रेजेंट। डिफिकल्ट था क्या कुछ इसमें? आई होप यू गाइस आर लाफिंग विद दिस, है ना? इजी हो गया, एकदम चिल हो गया। एपीएमएल क्या है? लास्ट वाला स्लाइड, ये वाला, ये वाला। टी सेल मीडिएटेड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में क्या होता है? देयर इज अ टीनेज और एडोलेसेंट मेल का हिस्ट्री। डॉक्टर कीर्ति, आई होप डॉक्टर कीर्ति, हाँ,
इसमें टीनेज एंड एडोलेसेंट मेल का हिस्ट्री होता है विथ अ मीडियास्टिनल मास, इधर मीडियास्टिनम पे, इधर मीडियास्टिनम पे सम काइंड ऑफ मास इज देयर, आइदर ऑन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड उन्होंने डायग्नोस किया, विच विल कॉज अ प्लूरल इफ्यूजन और एसवीसी सिंड्रोम, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, उसको कंप्रेस करेगा, कुछ ऐसा करेगा. देन यू हैव टू थिंक अबाउट टीएलएल, टी ए डबल एल, and the lineage markers are CD3, CD4, CD7 and CD8. Just information, just a differential diagnosis. But this is important. Acute lymphoblastic leukemia, acute myeloid leukemia. हाँ, क्लोवर लीफ होगा उसका वो अपीयरेंस. नाउ एपीएमएल इज अ ट्रांसलोकेशन 1517. मैंने ट्रांसलोकेशन का लिस्ट दिया है गाइस, वो रट लेना, ठीक है, आज रात को बैठकर, वो ग्रुप में है. द malignant promyelotic contains a massive bundles of overloads, तो इसमें भी फैगेट सेल्स. Only leukemia associated with DIC. Which leukemia is that? ALL. APL. Acha, this one. Because they release a very much procoagulants. That's why. Which will lead to a DIC storm. That's why I hope. Yes. That's why. Then APL is a medical emergency due to immediate DIC risk. And as Dr. Shivi said. If you suspect APL, start the treatment immediately with all trans retinoic acid. Do not wait for cytogenic confirmation. ठीक है, that is APML. Translocation, PML, RARA translocation, the malignant promyelocyte contains massive percent of overroads. तो overroads, now you have to, अगर डॉक्टर तानिया आपको overroads का दिया है सिर्फ इमेज, then you have to see some history. Is the history of a adult male with sudden onset, or the history is about a no mention of age, just a male or female with a risk of, मतलब उसका एपीटीटी वैल्यू, पीटीए वैल्यू, कोएगुलो फैक्टर्स आर हेवायर. गेटिंग इट? कोएगुलो फैक्टर्स आर हेवायर. एपीएल का क्वेश्चन विल बी, पेशेंट कम्स टू यू विथ अ abnormal value of पीटीए पीटीटी, है ना, कोएगुलेशन फैक्टर बकवास हो गए हैं. You did mixing study, the mixing studies are also not working. So that means there is some malignancy, some cells which are responsible to not letting the blood coagulate, or not letting the blood to discoagulate, मतलब the it is making the blood very much coagulate. So the D dimer will be very high, right? The APTT मतलब prothrombin time वगैरह will be very low. समझ गए? कोएगुलेशन एकदम जल्दी हो रहा है, DIC स्ट्रॉन्ग जैसा सिम्टम्स आ रहा है, स्ट्रोक का हिस्ट्री है. दिस आर ऑल DIC से एसोसिएटेड. तो उसमें ट्रांसलोकेशन 1517 याद रखना है, पीएमएल रारा जीन ट्रांसलोकेशन याद रखना है, राइट. एंड यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड. ठीक है. नाउ सीएमएल एंड ल्यूकीमोइड रिएक्शन के डिफरेंस इसमें आ जाते हैं. नाउ सीएमएल बोले तो क्या हुआ, एएमएल का भाई, विच इज क्रॉनिक. नाउ एएमएल में हम क्या बोल रहे थे, एडल्ट ऑनसेट, एक्यूट एडल्ट. इसमें अभी क्रॉनिक आ गया, तो मतलब बहुत टाइम से चल रहा है ना, एंड एडल्ट में भी है. तो इसमें एक लैप एंड नेप स्कोर करके एक लैब पैरामीटर है, वो बस याद रखना है कि व्हेन वी आर सीइंग क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, द लैप एंड नेप स्कोर इज वाइडली डिक्रीज्ड और लो, बट इन द ल्यूकेमोइड रिएक्शन इट इज वेरी हाई. आपको देखना है ये एब्सोल्यूट बेजोफिलिया. अगर एब्सोल्यूट बेजोफिलिया है, देन इट इज क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया विदाउट एनी क्वेश्चन. एंड क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया है मतलब कि वो गंदे गंदे सेल्स बना रहे हैं, तो वो गंदे गंदे सेल्स स्प्लीन बहुत टाइम से तोड़ भी रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, द स्प्लीन का साइज विल बी इंक्रीज्ड. तो देयर इज अ मैसिव स्प्लीनोमेगाली. समझे? चलो इसका आंसर दो. 46-year-old female presents to you with a MPO negative and palpable spleen. आंसर दो.
जिनको कंफ्यूजन हो रहा था, AML, ALL, CML, CLL, मजा आ रहा है अभी? कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में? ओ डॉक्टर HK, यस, MPO पॉजिटिव हो गया तो देन ALL में क्या पॉजिटिव होगा? विच लैब वैल्यू विल बी पॉजिटिव? दिस इज CML, और इसका लैब एंड नैप स्कोर विल बी लो। ALL में क्या पॉजिटिव होगा? यस, व्हाट इज TDT? कौन रिलीज करेगा? प्री मैच्योर सेल्स, है ना, प्री मैच्योर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोब्लास्ट। और अपना जो ये है CML है, इट इज ड्रिवन बाय अ ट्रांसलोकेशन 922 BCR ABL जीन फ्यूजन। तो दे आर, but they are very much responsive to tyrosine kinase inhibitors. So in that we will give imatinib, है ना, imatinib is very much effective in that case। ठीक है, चलो CLL पे आते हैं, लास्ट लास्ट वन, है ना, जो बचा है अपने में। पैथोग्नोमिक फीचर इसमें स्मज सेल्स है, फ्रजाइल लिम्फोसाइट्स, स्मज सेल ऑन स्मीयर। एंड पेशेंट का क्या होगा? एल्डरली पेशेंट, एसिम्टोमेटिक आइसोलेटेड लिम्फोसाइटोसिस। CLL क्या है? क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट इज क्रॉनिकली विद दिस, तो मतलब आपका एल्डरली पेशेंट आएगा, है ना, बट नॉट एन एक्यूट ऑनसेट। एसिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत टाइम से होगा, बट देयर विल बी अ आइसोलेटेड लिम्फोसाइटोसिस। मतलब व्हेन यू विल डू अ ब्लड स्मीयर, मतलब आपका अब उसका CBC करोगे, हाँ, स्प्लिनोमेगाली विल बी सीन इन CML इन दिस फोर, है ना। बाकी हेरी सेल ल्यूकीमिया में भी स्प्लिनोमेगाली रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ल्यूकीमिया है जो स्प्लिनोमेगाली करता है, CLL CML, ऐसा नहीं है। बट आउट ऑफ दिस फोर, ALL, AML, CLL, CML, APML, इन सब में स्प्लिनोमेगाली विल बी सीन इन दिस CML इटसेल्फ। ठीक है डॉक्टर अंजलि, तो CLL में दो थिंग यू हैव टू सी, इसकी एक तो क्रॉनिक ऑनसेट, पेशेंट कब का सफर कर रहा होगा, ठीक है, विथ एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं है इसमें। एंड ऑन द पेरिफेरल स्मीयर यू विल सी अ स्मज सेल। दिक्कत है ना, CLL में बोल रहा हूं ना। सी, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, यू विल टेल मी योरसेल्फ कि आपको मजा आ गया, समझ में आ गया। चलो, आई विल गिव यू, ठीक है। पेशेंट कम्स टू यू, एल्डरली फीमेल, ठीक है, CML भी दिक्कत है। डॉक्टर कीर्ति, पेशेंट कम्स टू यू, एल्डरली फीमेल, उसका अपने ब्लड टेस्ट करवाया, यू आर सीइंग लिम्फोसाइटोसिस, बाकी उसका, बाकी सब नॉर्मल है, लिम्फोसाइटोसिस इज देयर। यू डिड MPO is negative, you did TDT is negative, you did LAP and NAP, it is a normal, tell me the diagnosis। तो अभी इसमें you are covering all four, डॉक्टर शिवी, नॉट CML, CLL, it is CLL, जल्दीबाजी मत करो। तो अभी डॉक्टर कीर्ति, यू विल ओनली आंसर मी, ठीक है, टेल मी इफ दिस इज पॉजिटिव, if this is positive, MPO is positive, and here same history is there, elderly patient, what will be the case? But acute onset, what will be the case? MPO positive, adult onset, acute onset, adult patient, elderly patient. No, no, no. See, ALL versus AML. In this, patient was children with acute onset. In this, adult, all elderly with acute onset. यस डॉक्टर कीर्ति, AML इज एडल्ट, हाँ पूरा लिख देंगे एक साथ, ठीक है चलो। यू गाइज ओनली टेल मी, नो आई विल। अभी मैं कितनी बार पढ़ा हूँ? पांचवी बार पढ़ा हूँ क्या? सी, अभी तुम लोग मेरे को बताओ, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर डिसीज AML। चलो इसका तुम लोग बताओ मुझे क्या है ये।
एमपीओ पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, और क्या है? और क्या है इसमें? डॉक्टर तानिया, पॉपकॉर्न मत खाओ, आंसर लिखो। चलो, डॉक्टर जूम ने बोल रहा है कि एडल्ट है, एडल्ट ऑन एडल्ट है। बाकी और क्या है? ऑनसेट कैसा है? ऑनसेट कैसा है? डॉक्टर मृणाल, डॉक्टर शिवी, डॉक्टर डबल ए, डॉक्टर मानसी, बोलो कुछ। एक्यूट है, एक्यूट ऑनसेट है। और कुछ है इसमें? और कुछ मुझे लिखना बाकी रह गया है क्या? एम आई मिसिंग समथिंग? जल्दी बोलो। और रोड्स, यस डॉक्टर राठौड़, गुड। और रोड्स 15-17 का अलग था भाई। 15-17 क्या था? एपीएमएल था, ये नहीं है। डॉक्टर एच के, कंफ्यूज मत करो, दैट इज एपीएमएल, दिस इज नॉट एएमएल, इट इज एपीएमएल। और रोड्स, ठीक है। नाउ आई विल राइट ए डबल एल, इसका बोलो। हाँ, एटीएचए का ट्रीटमेंट एट्रा, ठीक है। चलो, एपीएमएल का ट्रीटमेंट एट्रा। एएलएल का बोलो, एएलएल, चाइल्ड, यस, विथ blast cell, yes, with TDT positive, yes, with child with what? Acute onset, yes, Dr. HK, acute onset, TDT positive, yes. हो गया? और कुछ एम आई मिसिंग समथिंग, सम साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का हमने कुछ देखा था, स्कैंट साइटोप्लाज्म, है ना, क्योंकि उतना मैच्योर ही नहीं हो पा रहे। चलो, अभी इसका बता दो मुझे, ए एल एल, TALL, इसका बता दो। इसका हमने क्या कहा था? टीनेजर और एडल्ट विथ कैसा टाइप का मास? यस, CD 3 4 5 6, 3 4 5 6 नहीं भाई, 3 4 7 8, एच के बाय 3 4 7 8। इसका क्या? टीनेज एडल्ट विथ मीडियास्टिनल मास, यस। एंड द मार्कर्स आर CD 3 4 7 8। और ये जो मीडियास्टिनल मास है वो क्या करवाएगा इसके पास? पेशेंट कैसे आएगा आपके पास? प्लूरल इफ्यूजन और एसवीसी सिंड्रोम, यस, दैट इज TLL। चलो, अभी आओ, एपीएमएल तो हो गया हमारा। एपीएमएल क्या है? एपीएमएल एक तो 15-17 ट्रांसलोकेशन विथ अ पीएमएल रारा जीन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एंड डीआईसी स्टॉर्म, इसमें भी और रोड्स प्रेजेंट है, इसको फैगट सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हमने, किसी ने बोला था, एट्रा, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ठीक है। फिर अभी CLL पे आते हैं। CLL बोलो, CLL, CLL, स्मज सेल एंड क्रोनिक एल्डरली। और कुछ? और कुछ एसिम्टोमेटिक? डॉक्टर शिवी, नॉट चाइल्ड, क्रॉनिक। चाइल्ड का हो गया, फ्रेजाइल लिम्फोसाइट्स, एल्डरली एसिम्टोमेटिक, एंड वन मोर थिंग, फ्रेजाइल लिम्फोसाइट्स है तो ब्लड ब्लड उसमें आपको क्या मिलेगा ब्लड टेस्ट में? आइसोलेटेड लिम्फोसाइटोसिस, आइसोलेटेड लिम्फोसाइटोसिस, समझ में आया? अभी हो गया पूरा क्लियर? चलो, सब आ गया इसमें। अभी एक कौन बच रहा है? CML बच रहा है। CML बोल दो, चलो। CML,
CML, अरे 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 MPO नेगेटिव, ठीक है चलो, MPO नेगेटिव इज नॉट अ टेस्ट फॉर CLL, इट इज रूलिंग आउट AML। हाँ, इमाटिनिब इसका ट्रीटमेंट है। MPO नेगेटिव हो गया तो ऐसा नहीं कि CML हो गया, हाँ स्कूल गर्ल अपीयरेंस है, यस, है ना डॉक्टर राठौड़, MPO नेगेटिव हो गया तो ऐसा नहीं कि CML है, इट इज रूलिंग आउट AML, कि AML नहीं है ऐसे, है ना। तो ऐसे कंफ्यूजन मत करना। इसमें क्लू सेल्स है, एंड इसमें मैसिव स्प्लिनोमेगाली है, और मैसिव स्प्लिनोमेगाली को वो अलग से, हाँ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, अलग से पाल्पेबल स्प्लिनोमेगाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका ट्रांसलोकेशन का नंबर बता दो, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? 9:22। चलो बढ़िया, हो गया सब क्लियर डॉक्टर कीर्ति? आई होप यू कैन नाउ डिफरेंशिएट इजीली, है ना। BCR ABL, यस। अभी टेंशन हट गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, मजा आ गया, यू गाइस आर हैप्पी, यू गाइस आर स्माइलिंग। चलो अभी आते हैं, यस मजा आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, बट यू गाइस आर रनिंग बिहाइंड दैट वन क्वेश्चन, इतना सारा, इतना स्ट्रेस मत लो यार, चिल रहो थोड़ा। सब कुछ इजी है, सब कुछ आपको आता ही है, एग्जाम में यू विल सी क्लियरली दैट वन ऑप्शन। चलो हेरी सेल ल्यूकीमिया में आते हैं। हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बिकॉज हेरी सेल नाम है, ट्रैप पॉजिटिव, ड्राई टैप यू विल सी, ठीक है। तो you don't have to see the whole question na Dr. Anjali, that is where you are going wrong, you are seeing everything that is written in the question। हेलो हेलो हेलो, सॉरी मेरा वो वाईफाई काम करना बंद कर दिया। सॉरी सॉरी, हेलो अभी आवाज आ रहा है? यस यस यस। तो आई वाज सेइंग कि फाइंड दैट वन थिंग एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। तो हेरी सेल ल्यूकीमिया की बात करते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ड्राई टैप, इसमें भी मैसिव स्प्लिनोमेगाली होगा, पेनसाइटोपिनिया होगा, पेनसाइटोपिनिया होगा, ठीक है। इसमें आइसोलेटेड लिम्फोसाइटोसिस हो रहा था, इसमें पेनसाइटोपिनिया है, क्लियर्ड वाया क्लेड्रिबिन, क्लेड्रिबिन इज अवर ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत स्लाइड्स थी, स्लाइड्स आएगी जाएगी भाई, तुमको क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है। हाँ अगर स्लाइड मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो क्वेश्चन पढ़ के रूल आउट करो। हॉजकिन लिम्फोमा क्या है, उसमें आपको रीड स्टीनबर्ग आउल लाई ओपियरेंस, है ना, आउल लाई ओपियरेंस रीड स्टीनबर्ग, दिस इज CD15 पॉजिटिव एंड CD30 पॉजिटिव एक्सप्रेशन प्रोफाइल। बर्किट लिम्फोमा स्टारी स्काई बायोप्सी अपीयरेंस, T18 814 ट्रांसलोकेशन, ओवर एक्सप्रेशन सीमिक ऑन्कोजिन, ठीक है। आई गेस क्वेश्चंस आएंगे अभी, करने क्वेश्चंस तो करो, बट वी आर ऑल आउट ऑफ द थियरी, द थियरी पार्ट इज ओवर गाइस, नाउ जस्ट क्वेश्चंस आर लेफ्ट। जिन्होंने पहले सेशन अटेंड किया उनको आंसर मालूम होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग सॉल्व करो। चलो चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। और शुड वी सॉल्व सम डाउट्स
बिकॉज क्वेश्चन तो अभी इरेलेवेंट है। कुछ डाउट है तो बोलो, वो सॉल्व करते हैं। आंसर बोलना है तो बोलो, बट आई एम सेइंग कि कुछ और प्रोडक्टिव काम करते हैं ना। तुम लोग को कुछ अलग डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन सॉल्व करके क्या मतलब? अभी अगर नए लोग आए हैं तो वो सॉल्व करो, बट जो जिन्होंने सॉल्व कर लिए है ऑलरेडी, तो वो कुछ और बोलो। चैट में कुछ डाउट है तो वो लिखो। कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं। एक के एक चीज रिपीट करने में क्या फायदा? हाँ तो करो सॉल्व, बोलो आंसर करो इसका, डॉक्टर राठौड़। वाह, डॉक्टर अंजलि, यू आर सेइंग बी। फिजियो में चार्ट? कौन सा चार्ट? फिजियो में? डॉक्टर अंजलि, यू आर राइट। द करेक्ट आंसर इज बी। डॉक्टर राठौड़, कैन यू say why it is B? रेटिकुलोसाइट काउंट आर इंक्रीज्ड, बट HbA1c का क्या? चलो लाइन वीमर्ग प्लॉट का डॉक्टर एच के बाग आखिरी में करवाते हैं। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट आप वो बोल रहे हो ना, फॉर एंजाइम्स? यस। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो अपना HbA1c है वो इसलिए कम आ रहा है बिकॉज देर इज इट इज अ फॉल्स वैल्यू। इसमें हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस की वजह से जो रेड ब्लड सेल टूट रहा है, तो उसकी वजह से HbA1c इज कमिंग फॉल्सली लो। ठीक है। तो आरबीसी का लाइफ प्लान क्रॉनिक प्लानिंग एंड इट इज डिक्रीज, फॉल्स डिक्रीज। ठीक है डॉक्टर राठौड़। डॉक्टर अंजलि, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बी। अरे अरे अरे, वेट वेट वेट। चलो, स्वन। बोलो गाइस आंसर। हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रही ना? फिर लिखो, आंसर लिखो। ये आपको क्या बोलना है कि आप एक तो 62 पोर्शन था पोस्ट ऑपरेटिव डे 6, उसको टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी किया था, और उसको अपना प्रोफिलेक्टिकली हिपेरिन दे रहे हो। ठीक है। उसका बेसलाइन वॉज 2 लाख, उसका प्लेटलेट काउंट था।
प्री ऑपरेटिव। बट आज उसका प्लेटलेट घट के 85,000 हो गया है। एंड क्लिनिकली एग्जामिनेशन रिवील्स अ पेन कोल्ड मोटल्ड राइट लोअर एक्सट्रीमिटी इंडिकेटिव ऑफ फ्रेश आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएटली मेडिकल इंटरवेंशन? तो ये आपका आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि हिपेरिन स्टार्ट किया प्रोफाइलेक्टिकली, स्टिल उसका प्लेटलेट काउंट बंद हो गया। यस डॉक्टर एच के, यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज बी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ हिपेरिन इंड्यूस्ड, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। तो इसके केस में यू हैव टू स्टॉप ऑल द हिपेरिन एंड स्टार्ट अ नॉन हिपेरिन एजेंट। डॉक्टर राठौड़, समझ में आ रहा? आपको बस ये क्लू देखना है कि आपने प्रोफाइलेक्टिकली उसको हिपेरिन दिया था, स्टिल द ब्लड, उसका प्लेटलेट कम हो गया। तो दिस इज नथिंग कि आपको हिपेरिन फॉर्मुलेशन बंद करके नॉन हिपेरिन चालू करना है। अभी थोड़ा ये बॉक्स देख लो। हिपेरिन थ्रोम्बोसिनिया में लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन भी नहीं देना है, वारफेरिन भी चालू नहीं करना है। स्टार्ट अर्गोट्रोबान, यू टू स्टॉप द हिपेरिन इमीडिएटली। एक मल्टीपल माइलोमा का ये क्रैब वाला क्राइटेरिया, आई होप यू गाइस रिमेंबर, कैल्शियम, रीनल, एनीमिया, बोन। द पेशेंट विल कम विद हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, एनीमिया एंड लाइटिक लीजन्स। ठीक है ना। इन माइलोमा डिफाइनिंग इवन विदाउट क्रैब, उसमें आपको मोर देन 60% बोन मेरो प्लाज्मा सेल्स एंड मोर देन 100 फ्री लाइट चेन आपको दिखेंगे। ठीक है। लीजन्स ऑन द एमआरआई विल बी मोर देन वन। अगर इसमें से ये तीन है तो भी विदाउट क्रैब ऑल्सो यू कैन डायग्नोज मल्टीपल माइलोमा। बट क्रैब इज कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, एनीमिया एंड लाइटिक लीजन है, तो मल्टीपल माइलोमा 100% है। ठीक है। बाकी तो नथिंग इज देयर। चलो खत्म। अभी उसमें आते हैं। ये है, जो जो भी आपको डाउट है वो जल्दी लिख दो। ये अभी मैं लाइन प्लॉट में आता हूँ। इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई? इसमें तुम देखो, बस देखो सिंपल। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन लिखा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब कि आपको ये के एम इंक्रीज वी एम अनअफेक्टेड, इसमें मत घुसो अभी। अभी बस इतना याद रखो कि अगर आपका किसी के साथ कंपटीशन है तो यू विल, उसका क्या करोगे तुम उसके साथ? गुस्सा आएगा तो तुम उसको ठोक दोगे। तो तुम लोग इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है। दैट इज कॉम्पिटिटिव। अगर उसके आपका और उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है तो तुम उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अनकॉम्पिटिटिव। समझ में आया? बट अगर आपका नॉन कॉम्पिटिटेंट है कोई, तो उसको आप देर से इंटरेक्ट कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ वी, देर से। इतना याद रखो। कॉम्पिटिटिव तो आप एक्स एक्सिस में भिड़ रहे हो, अनकॉम्पिटिटिव आप भिड़ ही नहीं रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव आप दूर जाके भिड़ रहे हो। सिंपल। पीडिया में ये हो गया आपका एच के भाई। पीडिया में कंजेनाइटल, कहाँ गए? ट्वेंटी वन, 11, 17, इसमें कंफ्यूजन है। मतलब 21 हाइड्रोक्सिलेज, वो वाला। तो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन है कि कब कौन से टाइम पे क्या करें, ऐसा है। ओके ओके ओके। चलो उसका एक टेबल बना लेते हैं। 21 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा एंड 17 अल्फा, ये तीन है ना। इसमें आपको एक याद, इसमें आपका एक ही दिमाग जाना चाहिए, जो कि है अ, देखो इसमें सब में कोर्टिसोल तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है। कोर्टिसोल तो सबका डिक्रीज हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है ना?
हेलो हेलो। हाँ, स्क्रीन विजुअल है। हेलो पीपल। यस। तो इसमें कोर्टिसोल will be decreasing in everything. Aldosterone will increase only in 17 alpha. ठीक है, सिर्फ 17 अल्फा में एल्डोस्टेरोन विल बी इंक्रीज्ड। नाउ एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स विल बी ओनली इंक्रीज्ड इन 11 बीटा एंड 21 अल्फा में भी, 21 हाइड्रोक्सिलेज में भी एंड्रोजन्स विल बी इंक्रीज्ड। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 21 एंड 11 बीटा में? डिफरेंस क्या है? इन दिस ACTH will be high, in this it won't. सिंपल है गाइस। इसमें कोर्टिसोल तो है ही नहीं, कोर्टिसोल तो बना ही नहीं पड़ रहा है। एल्डोस्टेरोन भी गया, सिर्फ एंड्रोजन बढ़ेगा, और वो भी ACTH की वजह से। तो ACTH ऑल्सो विल बी हाई। ACTH बाकी और किसी में हाई नहीं होगा। सोल्ट वेस्टिंग वो सब याद रखो, बट ये भी याद रखो, ठीक है? दिस विल मेक योर ब्रेक, मेक और ब्रेक। 11 बीटा में कोर्टिसोल तो कम है, एंड्रोजन्स विल बी हाई। जूम जूम इन करूं अब? ठीक है। और एल्डोस्टेरोन विल आल्सो बी लो, ठीक है? एंड्रोजन विल बी इंक्रीज्ड, बट एल्डोस्टेरोन ओनली विल बी इंक्रीज्ड इन 17 अल्फा। और इसमें आपको क्या दिखेगा? हाइपरटेंशन, है ना, हाइपोकेलिमिया और सेक्सुअल इन्फेंटलिज्म। समझ गए? गेटिंग इट गाइस? हाइपरटेंशन विल ओनली बी सीन इन 17 अल्फा, ऐसा याद रख लो। 17 बीटा में भी होता, 11 बीटा में भी होता है, बट इसमें प्रोमिनेंट रहता है, ठीक है? और इसमें सोल्ट वेस्टिंग, विरिलाइजेशन, ठीक है? क्लियर? जिनको डाउट हो रहा था, डॉक्टर अंजलि एंड डॉक्टर कीर्ति, टेबल अच्छे से पढ़ लो। कोर्टिसोल सब में डिक्रीज होगा, अल्डोस्टेरोन ओनली 17 अल्फा में इंक्रीज होगा, एंड्रोजन बोथ 21 एंड 11 में इंक्रीज होगा, बट 21 में ACTH विल आल्सो बी हाई, ठीक है? और कुछ? लिखो चैट में, जल्दी जल्दी। हाँ, ये टेबल बस एक बार अपने बुक में बना लो डॉक्टर अंजलि, अच्छे से, है ना, कि कोर्टिसोल और इसका रिलेशन क्या है, इसका और इसका क्या है, इसका इसका क्या है, ऐसा एक अच्छे से टेबल बना लो। 2-3 बार खुद समझो, किसी और को समझाने की ट्राई करो, एंड क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये याद रखना कि 17 अल्फा में एक ही चीज बढ़ रही है, इसमें दोनों बढ़ रही है, बट इसके साथ साथ ACTH भी है। हाइपरटेंशन सिर्फ इसमें और इसमें है, ठीक है? कुछ और है? कोई डाउट है? किट्स, किट्स में दवाई दवाई का याद रखने का जरूरत नहीं है, बस डिसीजन किट याद रख लो। दवाई नहीं पूछी जाती FMG में, वो नीट PG एम्स का टॉपिक है। बस कलर कोड, और मतलब कलर और डिसीज याद रख लो। हाँ, दवाई के पीछे मत भागो। कल PSM है बाय द वे गाइस, PSM इसी टाइम पे रखे 7 o'clock पे। PSM में ओनली इमेज बेस्ड थिंग्स, ठीक है? पूरा डिटेल PSM नहीं, ओनली इमेज वाला। 7 बजे? बट मेरा 8 बजे तक ड्यूटी है, तो 8:30 को चलेगा। आई हैव ड्यूटी सिंस फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8, 12 घंटे का। आई विल ट्राई टू कम अर्ली, है ना, बट 8:30 मैक्स, उससे लेट नहीं, उससे मतलब हाँ, उससे लेट नहीं। 8:30 तक आई विल ट्राई, अगर मैडम ने मेरे को 6-7 बजे तक जाने दिया तो। चलो, और कुछ है क्या? किस फिर पढ़ना है?
आई डोंट थिंक कुछ लेफ्ट, एनीथिंग इज लेफ्ट। आई होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। चलो गाइस, टेंशन मत लेना, है ना। बिशप स्कोर में इश्यू है, बिशप स्कोर तो भाई गायनेकोलॉजिस्ट को भी नहीं आते। ठीक है, बिशप स्कोर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन गायनेकोलॉजिस्ट। तो वो अपने लिए तो है ही नहीं, तो उसमें उतना टेंशन मत लेना, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। बहुत कभी कभी ही वो लोग बिशप्स को डायरेक्टली पूछते हैं, बट स्टिल वो उतना डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, तो डोंट वरी, ट्राई करना, एक बार याद रह जाए। नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं। ठीक है डॉक्टर अंजलि जी। सर्जरी में फिफ्थ एंड सेवन एंड सेकंड कोस्टल नीडल। अच्छा। ओ, यू आर सेइंग कि कब फिफ्थ इंटरकोस्टल में कब डालेंगे, सेवंथ इंटरकोस्टल में कब डालेंगे, एंड व्हाट एल्स, सेकंड इंटरकोस्टल में कब डालेंगे। मैंने लेफ्ट कर दिया, रुको एक सेकंड। चलो, आपको याद रखना है कि अगर सेकंड इंटरकोस्टल में पूछा है, तो आपको याद रखना है कि अगर, चलो फिफ्थ का कह करते हैं, फिफ्थ में मोस्टली फिफ्थ में मोस्टली दे विल टेल यू कि हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल ड्रेनेज है। ठीक है, तो उसमें आपको फिफ्थ में डालना है। अगर आपको पूछे कि सेवेंथ में कब डालेंगे, तो यू टू रिमेंबर फॉर प्लूरल टैप, प्लूरल टैपिंग, एंड दैट टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब। वाई टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब? टू अवॉइड द न्यूरोवास्कुलर बंडल, क्योंकि जो लोअर बॉर्डर में रहता है ना, उधर न्यूरोवास्कुलर बंडल रहता है, उधर नर्व्स होता है, वेन्स होता है, आर्टरीज होता है, तो उधर डालोगे तो यू विल इंजर। तो उसको आपको अपर बॉर्डर में डालना है फॉर प्लूरल टैपिंग। एंड सेकंड इंटरकोस्टल इज फॉर नीडल डिकम्प्रेशन, की टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया पेशेंट को, तो इन दैट अगर हीमोथोरेक्स है, ब्लड है, तो फिफ्थ, अगर एयर है तो सेकंड, एंड अगर प्लूरल फ्लूइड है तो सेवेंथ। क्लियर? दैट टू इन दी अपर, अपर, ठीक है, अपर बॉर्डर। चलो और आगे बढ़ो, और